the further Navy programs, and we have to place a lot of satellites for multiple applications, and we are working for our own space station called Bharat Antariksh Station. The first module is already approved, and then we have to establish the space station by 2035. And Honorable Prime Minister has rolled out the vision for the space sector. नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत का खास शो विस्तार से। क्या आपने कभी सोचा ये दोस्तों कि जब दुनिया की महाशक्तियां अंतरिक्ष में अपनी जागीरें बांट रही होंगी तब भारत कहां खड़ा होगा? क्या हम सिर्फ नीचे से ऊपर सितारे ही देखेंगे या ऊपर बैठकर दुनिया की दिशा तय करेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि कल तक जो सिर्फ एक सपना लगता था, आज उस पर मुहर लग चुकी है। जी हां, इसरो चीफ डॉक्टर वी नारायण ने ऐलान कर दिया है कि भारत 2035 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS स्थापित कर लेगा। और सबसे बड़ी खबर तो यह है कि इसके पहले मॉड्यूल को मंजूरी भी मिल चुकी है। यह सिर्फ विज्ञान की खबर नहीं है दोस्तों, ये भारत के स्पेस सुपर पावर बनने का घोषणा पत्र है। आज के एपिसोड में हम उस भविष्य की परतें खोलेंगे जो जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर लिखा जा रहा है, और क्यों साल 2035 भारत के लिए गेम चेंजर होगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, आज जब हम नेशनल स्पेस डे मना रहे हैं तो हमें पीछे मुड़कर देखना होगा। 64 साल पहले जब भारत ने अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू किया था, तब हमारे पास न साधन थे न पैसा था। लेकिन आज की डेट साल 2026, डॉक्टर नारायण कहते हैं कि भारत आज 50 से ज्यादा क्षेत्रों में अंतरिक्ष तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। आप जो मैप देखते हैं, जो आपके सामने होता है, जो मौसम की भविष्यवाणी सुनाते हैं, जो टीवी ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, ये सब उसी की देन है। लेकिन अब हम सर्विस देने से रूलर बनने की ओर आगे बढ़ चुके हैं। चंद्रयान 3 की सफलता तो दुनिया ने देखा, और चंद्रयान 3 की सफलता ने दुनिया को यह दिखाया कि भारत का लोहा कितना मजबूत है और क्या है। अब शिव शक्ति पॉइंट सिर्फ चांद पर एक नाम नहीं है, ये भारत की क्षमता का प्रतीक है, प्रमाण है। You all know 23rd August 2023 was a historical day for Mother India, and we soft landed Chandrayaan 3 successfully near the south pole of moon, and we became the only country and first country successfully soft landed near south pole of moon. Honorable Prime Minister of India announced that day to be celebrated as the National Space Day, and today is the third National Space Day we are celebrating, and the theme is a very, very important theme: innovation, collaboration, and aspiring for becoming global leadership in the space area. As you all know, India is innovating in multiple areas, and in the space sector, really lot of good things have happened. Today, a country which started space program 64 years back, 50 plus areas, we are serving the common man of the country in the area of earth observation, remote sensing, telecommunication, television broadcasting, teleeducation, disaster warning and mitigation, ensuring safety and security of every citizen of the country, navigation, and monitoring train movement in the real time, potential fisheries zone application. Like that, so many applications we are doing. And in the area of scientific discoveries, we are second to none. There are 10 scientific missions we have accomplished, and the important missions like Chandrayaan 1 finding water molecule on the moon, Chandrayaan 2 placing the best camera in the moon's orbit, and Chandrayaan 3 soft landing near south pole of moon, Mars orbiter mission accomplishing in the first attempt itself. And then of course very important missions like Astrosat. Lot of good things are done under the visionary leadership of Honorable Prime Minister of India Narendra Modi ji. Lot of programs are in the pipeline. We are working on the Gaganyaan program, we are working on the further Navy programs, and we have to place a lot of satellites for multiple applications, and we are working for our own space station called Bharat Antariksh Station. The first module is already approved, and then we have to establish the space station by 2035. And Honorable Prime Minister has rolled out the vision for the space sector, and number one, we have to place multiple satellites, and we have to work for the crewed lunar mission, then ensuring the application for the continuity of the application for the common citizens. Another important thing is, the space sector reform 2020
the government of India has announced. Today, we are happy to see that 440 plus startup companies are working in the area, and the space economy is another important target. We are working towards that. Recently, you all would have heard a couple of startup companies are succeeding in their own field, and this all indicates the growth of the country. And we, the space community of India, is working towards the Viksit Bharat 2047 for making our contribution for making our country as a developed country. And once again, my greetings on behalf of the space community of India for each and every one of you and the countrymen for on the National Space Day 2026. The government just declared about the Junagadh space lander. What about Space? Space flight Launching pad. Launching pad. We are all working towards that. सर How many opportunities? रॉकेट और सैटेलाइट अब प्राइवेट कंपनियां बनाएगी ऐसा है क्या? Say today, based on the government policy, we have to improve the space ecosystem in our country. And it is not only the government which has to work. ISRO is going to handhold, InSpace is going to authorize, and we are enabling the startups, companies and the private sector to participate in a big way in the space activities. Thereby, the space economy will go to at least multifold. अब बात करते हैं दोस्तों उस भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की जिसका जिक्र इसरो चीफ ने किया। ये क्या है, चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये अंतरिक्ष में तैरती एक प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी होगी। इसका वजन करीब 20 से 40 टन होगा। कक्षा की बात करें तो पृथ्वी की निचली कक्षा यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट LEO होगा। अब क्षमता की बात करें तो यहां 3 से 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्री हफ्तों तक रह सकेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, पहला मॉड्यूल। डॉक्टर नारायण ने कहा कि पहले मॉड्यूल को मंजूरी मिल चुकी है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि स्टेशन बनाने की पहली ईंट तैयार है। साल 2028 तक भारत इसका पहला हिस्सा लॉन्च कर सकता है। यह स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS से अलग होगा। यह पूरी तरह से मेड इन इंडिया होगा और यह सफर गगनयान से होकर गुजरता है। बिना इंसानों को अंतरिक्ष में भेजे स्टेशन बनाना नामुमकिन है। गगनयान वो सीढ़ी है जो हमें BAS तक ले जाएगी। यहां एक और बड़ा मोड़ है, प्राइवेटाइजेशन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो कहा उसे ध्यान से सुनिए। स्पेस सेक्टर को प्राइवेट हाथों के लिए खोलने से इसरो की ताकत कम नहीं हुई बल्कि कई गुना बढ़ गई है। अब इसरो कंस्ट्रक्शन के बजाय इनोवेशन पर ध्यान दे रहा है। स्टार्टअप अब रॉकेट और सैटेलाइट बना रहे हैं जिससे इसरो का विजन 2035 और तेज हो चुका है। अब यहां कई लोग पूछेंगे कि भारत को इतने करोड़ रुपए ऊपर क्यों फूकने पड़े हैं, यानी कि अंतरिक्ष में क्यों फूकने पड़े। इसका सीधा जवाब विस्तार से हम समझते हैं कि हमें स्पेस स्टेशन की जरूरत क्यों है। इसका पहला पॉइंट है दोस्तों, फार्मास्यूटिकल क्रांति। जी हां, जीरो ग्रेविटी में ऐसी दवाइयां बनाई जा सकती हैं जो पृथ्वी पर मुमकिन नहीं है। कैंसर रिसर्च के लिए यह वरदान है। इसका दूसरा पॉइंट है भविष्य के फ्यूल। जी हां, हीलियम 3 जैसी चीजों के लिए चांद पर जाना होगा और स्पेस स्टेशन उसका पेट्रोल पंप या बेस बन जाएगा। तीसरा है सुरक्षा। जी हां, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो देश अंतरिक्ष को कंट्रोल करेगा वही पृथ्वी की सुरक्षा को कंट्रोल करेगा। ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, मामला है। चौथा पॉइंट है इकोनॉमी। ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए हमारा अपना स्टेशन होना अनिवार्य है, जो अब दिख रहा है। वैसे जमीन पर सरहदों की लड़ाई तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे सिर के ऊपर हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हुए कुछ ऐसे मकान हैं जहां इंसान महीनों तक रहते हैं। इन्हें हम स्पेस स्टेशन कहते हैं। दुनिया में 195 देश हैं, लेकिन अंतरिक्ष में अपनी छत बनाने की कुवत सिर्फ गिने चुने देशों के पास है। आज जब भारत 2035 तक अपना स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है तो यह जानना जरूरी हो जाता है कि इस रेस में कौन कौन से देश कहां खड़े हैं, किसके पास अपना आलीशान बंगला है और कौन अभी किराए के कमरे में रह रहा है। तो चलिए अब अंतरिक्ष के इस रियल एस्टेट का पूरा कच्चा चिट्ठा भी खोल कर रखते हैं। देखिए, स्पेस स्टेशन की कहानी शुरू होती है 1971 में। दुनिया जब नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर कदम रखने की चर्चा कर रही थी, तब सोवियत संघ यानी तब का रूस ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया। सोवियत संघ की बात करें तो इसका पहला था
सैल्यूट। जी हां, 1971 में रूस ने दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन सैल्यूट 1 लॉन्च कर दिया। यह एक छोटे कमरे जैसा था, लेकिन इसने साबित कर दिया कि इंसान अंतरिक्ष में रह सकते हैं। और दूसरा है मीर, MIR। 1986 में रूस ने मीर लॉन्च किया। यह दुनिया का पहला मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन था, यानी इसे टुकड़ों में जोड़कर बड़ा किया गया था। मीर 15 साल तक अंतरिक्ष में रहा और रूस के दबदबे का प्रतीक भी बना। दोस्तों, अब बात करते हैं उस अजूबे की जो आज भी हमारे ऊपर चक्कर काट रहा है, ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दुनिया का सबसे महंगा घर कैसे है, ये भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले जान लीजिए किन देशों का ये है। देखिए, ये किसी एक देश का नहीं है, इसे 15 देशों ने मिलकर बनाया है, जिनमें मुख्य है अमेरिका, रूस, यूरोप और जापान और कनाडा। इसकी लागत की बात करें तो इसे बनाने में 150 बिलियन डॉलर, करीब 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। ये मानव इतिहास की सबसे महंगी चीज है। इसकी खासियत की बात करें तो ये फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। यहाँ एक साथ 6 से 7 अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं। 1998 से लेकर आज तक यहाँ एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब कोई इंसान मौजूद ना हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ट्विस्ट है, ISS अब बूढ़ा हो चला है। साल 2030 तक इसे रिटायर कर दिया जाएगा और इसे प्रशांत महासागर में डुबो दिया जाएगा। यानी अमेरिका और रूस का यह साझा घर अब ढहने वाला है। अब जब अमेरिका ने चीन को ISS में शामिल होने से मना कर दिया तो चीन ने कहा ठीक है, हम अपना खुद का बनाएंगे। और आज चीन दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसका अपना स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट स्पेस स्टेशन है, जिसका नाम है तियांगोंग, जिसका अर्थ है स्वर्गीय महल। अब चीन का तियांगयोंग अकेला और आत्मनिर्भर कैसे है, ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी क्षमता की बात करें तो ये ISS से छोटा है, लेकिन बेहद आधुनिक है। रणनीति की बात करें तो चीन ने इसे महज 2 से 3 सालों में पूरा कर लिया। आज वहां चीनी अंतरिक्ष यात्री, जिन्हें टाइकोनॉट्स कहा जाता है, रिसर्च कर रहे हैं वहां बाकायदा। ये स्टेशन साबित करता है कि अगर आपके पास तकनीक और पैसा है तो आप अंतरिक्ष में अपनी समानांतर सत्ता चला सकते हैं। वैसे अमेरिका हार नहीं मान रहा है। अमेरिका ने भी 1973 में अपना पहला स्वतंत्र स्टेशन स्काई लैब बनाया था, लेकिन वो ज्यादा समय तक टिक ही नहीं पाया और 1979 में वो गिर गया। उसके बाद अमेरिका ने अपना पूरा ध्यान ISS पे लगा दिया, लेकिन अब अमेरिका की रणनीति बदल गई है। नासा अब खुद स्टेशन बनाने के बजाय प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा दे रहा है। अमेरिका का स्काई लैब और अन्य प्रयास क्या है, ये भी जान लीजिए। देखिए, इसका पहला है एक्सियोम स्पेस, ये दुनिया का पहला कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन बना रहे हैं। दूसरा है ब्लू ओरिजिन, जेफ बेजोस की कंपनी ऑर्बिटल रीफ नाम का स्टेशन बना रही है, जो अंतरिक्ष में एक बिजनेस पार्क जैसा होगा। अब यहां पर एक सवाल आता है दोस्तों कि भारत कहां खड़ा है। देखिए, अभी तक हमारे पास अपना स्टेशन नहीं है। हमारे अंतरिक्ष यात्री या तो रूस के रॉकेट में गए या अब नासा के साथ ISS पर जाने वाले हैं। लेकिन जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया कि डॉक्टर V नारायण का जो इसरो चीफ है, 2035 तक का लक्ष्य है उनका, भारत को उस एलीट क्लब में खड़ा कर देना जहां अभी सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन ही है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS का मतलब होगा कि भारत के पास अपनी लैब होगी, अपना डेटा होगा और अपनी जासूसी या सुरक्षा की चाबी अपने पास ही होगी। हम किराएदार से मालिक बनने की राह पर आगे बढ़ चुके हैं और चंद्रयान 3 की दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग ने यह रास्ता साफ कर दिया था पहले ही कि भारत अब अंतरिक्ष के रियल एस्टेट में पीछे नहीं रहेगा। खैर दोस्तों, साल 2035 ज्यादा दूर नहीं है। आज का बच्चा जब 11 साल बाद युवा होगा, तब वो आसमान की तरफ देखकर गर्व से कह उठेगा कि ऊपर तो तारा चमक रहा है, वो हमारा अपना घर है। इसरो चीफ डॉक्टर V नारायण का ये भरोसा सिर्फ एक सरकारी बयान नहीं मान सकते हम। आज विस्तार से के लिए बस इतना ही, लेकिन आपसे सवाल है दोस्तों, जाते जाते आप सवालों को जवाब दें कि क्या भारत 2035 से पहले ये कारनामा कर दिखाएगा? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर लिखें और याद रखिए, अंतरिक्ष सिर्फ सितारों की जगह नहीं, ये हमारी अगली सीमा है। देखते रहिए विस्तार से। जय हिंद।